Hello everyone, welcome to Inspiration IAS Daily News Analysis. Today we are going to discuss the important news articles of 25th and 26th May 2021 from Hindu, Indian Express, PIB and Assam Tribune. Please note that you can download this lecture PDF from our website www.inspirationias.org, as well as you can also download daily MCQ and Vishleshan from our website by clicking this link below. Alternatively, you can follow our social media page like Facebook, Instagram and Telegram channel for other study materials and notes. Inspiration IAS has started its online foundation batches for UPSC as well as other state PCS examinations. So if you are preparing for UPSC or other state PCS, then you can enroll in our online come offline foundation batches, where you will be getting the highly interactive classes of India's top UPSC educators. And this program has a unique features in which you have options to shift it from the online to offline format. So whenever the situations permits, you can even shift your online classes to the offline batches. For more information, you can call in this given number, or you can also register in our website. Inspiration IAS has started its online mock test series for UPSC and other state PCS examinations. So if you are preparing for this year prelims examinations 2021, then you can enroll in our mock test series. This mock test series will be available both in online as well as offline format. So for more information, you can call in this given number, or even you can register in our website www.inspirationias.org. So let's start our today's daily news analysis. आज का हमारा पहला न्यूज है डिप्कोवैन किट से रिलेटेड। रिसेंटली डीआरडीओ ने डिप्कोवैन किट को डेवलप किया है। ये एक ऐसा किट है जो डिटेक्ट करता है कोरोना वायरस के एंटीजेंस को। तो समझते हैं थोड़ा ये डिप्कोवैन किट के बारे में। देखिए, न्यूज ये है कि इंडियाज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड ए कोविड-19 एंटीबॉडी किट। ध्यान रखिएगा, ये एंटीबॉडी किट है। It means the DIPCOVAN kit can detect both spike as well as nucleocapsid protein of coronavirus with a high specificity, with a high sensitivity of 97%. मतलब कोरोना वायरस के दोनों ही स्पाइक एज वेल एज न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन्स दोनों को डिटेक्ट करेगा। एंड इट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड हैज बीन डेवलप्ड बाय डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड अलाइड साइंस लैब ऑफ डीआरडीओ इन एसोसिएशन विथ दिल्लीज वैनगार्ड डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड। तो ये भी जॉइंट वेंचर है डीआरडीओ और दिल्ली के वैनगार्ड डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड से। And this DIPCOVAN is intended for the qualitative detections of IgG, immunoglobulin G antibodies in human serum or plasma targeting SARS coronavirus 2 related antigen। तो ये एक ऐसा किट है जो डिटेक्ट करेगा IgG को, जो स्पेसिफिकली अटैक करता है SARS coronavirus 2 के एंटीजेंस को। मतलब कि यह वह एंटीबॉडीज है जो डिटेक्ट करता है कोरोना वायरस के एंटीजेंस को, जो बेसिकली SARS कोविड-2 के एंटीजेंस है। ये जो किट होता है, इट ऑफर्स ए सिग्निफिकेंटली फास्टर टर्न अराउंड टाइम ऑफ अराउंड जस्ट 75 मिनट्स टू कंडक्ट द टेस्ट विदाउट एनी क्रॉस रिएक्टिविटी विद अदर डिजीजेस। तो लगभग इस टेस्ट को 75 मिनट लगते हैं, और ये किसी भी तरह के दूसरे डिजीज से इसका किसी तरह का रिएक्शन नहीं होता है। मीन्स ये किट 100% सेफ है, ये किट 100% श्योर होता है। ऑलमोस्ट इसकी जो सक्सेस रेशियो है ऑलमोस्ट अराउंड 97% है। द किट हैज अ सेल्फ लाइफ ऑफ 18 मंथ्स, 18 मंथ का इसका क्या सेल्फ लाइफ है। तो ये काफी अच्छा किट है, और ये किट हेल्प करेगा फास्टर डिटेक्शंस में, सो दैट इसी के मुकाबले दूसरे जो किट वगैरह है उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, जबकि ये सिर्फ 75 मिनट्स में ही ये कोविड को डिटेक्ट कर सकता है। ये जो ये ब्रोशर है जो डीआरडीओ ने रिलीज किया है, लगभग वही बातें हैं जो हमने डिस्कस किया है। तो ध्यान रखिएगा, ये ऑलमोस्ट अराउंड 75 मिनट्स तक में 75 मिनट्स में टेस्ट का रिजल्ट देता है। एंड इट हैज बीन डेवलप्ड थ्रू एक्सटेंसिव टेस्टिंग ऑन 1000 सैंपल। लगभग इसको 1000 सैंपल पर टेस्ट किया गया है, और हजारों सैंपल में ऑलमोस्ट सारे में इसने करेक्ट रिजल्ट दिया है। हमारा दूसरा न्यूज है जेब्रा फिश से रिलेटेड, और रिसेंटली जेब्रा फिश के ऊपर में एक रिसर्च किया गया है। That research will help in human space flight। तो थोड़ा समझते हैं आखिर ये न्यूज क्या है। रिसेंटली ए न्यू रिसर्च इन जेब्राफिश आपको दिख रहा होगा, इस तरह की होगी। ये लोग इसको एक्वेरियम वगैरह में भी रखते हैं।
ए न्यू रिसर्च इन जेब्राफिश हैज डेमोन्स्ट्रेटेड हाउ इंड्यूस्ड हाइबरनेशन, जिसको हम लोग टॉर्पोर भी बोलते हैं, में प्रोटेक्ट ह्यूमन फ्रॉम एलिमेंट्स ऑफ स्पेस, स्पेशली रेडिएशन ड्यूरिंग स्पेस फ्लाइट। ये जो रिसर्च है रिसेंटली जेब्राफिश पर हुआ था और देखा ये गया कि अगर एक जेब्राफिश में इंड्यूस्ड हाइबरनेशन अगर किया जाए, आई एम श्योर आप लोगों ने बहुत सारे साइंस फिक्शन मूवीज में देखा होगा कि जिसमें बहुत दूर की जो जर्नीज होती है उसमें लगभग लोगों को स्पेस जो पैसेंजर होते हैं उनको एक हाइबरनेशन स्टेट में डाल दिया जाता है, वो स्लीप में चले जाते हैं और उनकी एज भी कम बढ़ती है और बहुत दिनों तक वो जी सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस जेब्राफिश से ये रिसर्च निकल के आ रहा है। तो जेब्राफिश के अंदर में अगर हम लोग टॉर्पोर या इंड्यूस्ड हाइबरनेशन करते हैं तो जेब्राफिश ऑलमोस्ट बहुत दिनों तक वो स्टे कर सकती है और अपने बॉडी के मैकेनिज्म्स को वो मिनिमाइज कर सकती है, जिसके चलते उसकी बॉडी की एज भी स्लो हो जाएगा, एजिंग भी स्लो हो जाएगा और बाकी प्रोसेस भी स्लो हो जाएंगे। इस तरह के एक्टिविटीज हेल्प कर सकता है या इस तरह के इंसिडेंट्स हेल्प कर सकता है हमें स्पेस फ्लाइट में। सो टॉर्पर इज, होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो टॉर्पर इज ए स्टेट ऑफ डिक्रीज फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी इन एन एनिमल यूजुअली बाय ए रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर एंड मेटाबॉलिक रेट। टॉर्पर के कंडीशंस में बॉडी का मेटाबॉलिक रेट बहुत ही कम जो हो जाता है और बॉडी का टेम्परेचर भी रिड्यूस्ड हो जाता है। टॉर्पर इनेबल्स एनिमल टू सर्वाइव पीरियड्स ऑफ रिड्यूस्ड फूड अवेलेबिलिटी। ये एक ऐसा कंडीशन भी होता है जहां पर जानवरों की फूड अवेलेबिलिटी जो होती है वो भी कम हो जाती है, तो फूड भी उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आई एम श्योर आप लोगों ने देखा होगा हाइबरनेशन या शीत निद्रा, आप लोग जानते होंगे, जिसमें बेयर वगैरह करते हैं। जब ठंड में खाना वगैरह नहीं होता तो बियर्स अपने बॉडी के फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को बहुत ही कम कर लेते हैं, जिसके चलते उनके बॉडी में ज़्यादा फूड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये कुछ वैसा ही है। नेक्स्ट, द रिसर्चर्स एक्सपोज जेब्राफिश टू रेडिएशन। देखिए आमतौर पे जो स्पेस फ्लाइट में बाकी खतरे तो है ही है, बट एक सबसे बड़ा जो खतरा होता है वो रेडिएशन का खतरा होता है। रेडिएशन हमारे जैसे ही हम अपने अर्थ के जो मैग्नेटोस्फेयर या जो मैग्नेटिक फील्ड से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलते हैं, तब हमारे ऊपर में बहुत सारे रेडिएशंस का हमला होता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हमारे धरती के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में है, इसलिए उसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। बट जब स्पेस फ्लाइट होगा तो वो स्पेस फ्लाइट हमारे धरती के मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जाना पड़ेगा लोगों को। वहां पर सूरज से रेडिएशन का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है या दूसरे स्टार से, तो उससे बचने के लिए साइंटिस्ट ट्राई कर रहे हैं इस जेब्राफिश के टॉर्पर को या इंड्यूस्ड हाइबरनेशन को। The researcher exposed zebrafish to radiation like what would be experienced on a 6-month journey to Mars. They observed sign of oxidative stress, जिससे imbalance between antioxidants and free radicals, इस तरह के situations होते हैं। डीएनए का डैमेज हो सकता है अगर रेडिएशन अगर मिले तो। स्ट्रेस हार्मोन्स सिग्नलिंग एंड चेंजेस टू द सेल डिवीजन साइकिल। स्ट्रेस हार्मोन के सिग्नलिंग में भी चेंजेस होगा और हो सकता है सेल डिवीजन के साइकिल में भी चेंजेस हो जाए। द रिसर्चर देन इंड्यूस टॉर्पोर इन ए सेकंड ग्रुप ऑफ जेब्राफिश। फिर रिसर्चर्स ने सेकंड ग्रुप ऑफ जेब्राफिश में ये टॉर्पोर या इंड्यूस्ड हाइबरनेशन किया, विच वेयर देन एक्सपोज टू द सेम डोज ऑफ रेडिएशन। उसके बाद उन सारे ग्रुप को फिर से रेडिएशन दिया गया। इस बार रिजल्ट डिफरेंट रहा। The result showed that a torpor lowered the metabolic rate within the zebrafish and creates a radioprotective effect, which protects against the harmful effect of radiations. तो उस रेडिएशन से वो बच सके और जितनी फिशेस थी। टॉर्पोर इज ए फॉर्म ऑफ हाइबरनेशन इन ए ब्रीफ स्पेल ऑफ सस्पेंडेड एनिमेशंस। इट यूजुअली लास्ट लेस देन अ डे। When in torpor and animal metabolism, heartbeat, breathing and body temperatures are greatly reduced. नेक्स्ट, इस स्टडी में द रिसेंट टेक्नोलॉजीज एडवांसमेंट माइट हैव मेड स्पेस ट्रैवल मोर एक्सेसिबल, हाउएवर लॉन्ग टर्म स्पेस ट्रैवल इज इनक्रेडिबली डेट्रीमेंटल टू ह्यूमन हेल्थ। अगर लॉन्ग टर्म स्पेस ट्रैवल होगा तो हो सकता है इंसानों को बहुत नुकसान भी हो। इस स्टडी का सिग्निफिकेंस ये है कि द स्टडी कुड हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग हाउ ए फॉर्म ऑफ हाइबरनेशन नोन एज इंड्यूस्ड टॉर्पर, ए स्टेट ऑफ रिड्यूस्ड मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मे प्रोवाइड रेडियो प्रोटेक्टिव इफेक्ट। हाइबरनेशन इज ए फिजियोलॉजिकल कंडीशन फाउंड इन मेनी स्पीसीज। हालांकि हाइबरनेशन बहुत सारे जानवरों में पाया जाता है, जैसे कि बेयर वगैरह में या भालू में। ये स्टडी बहुत हेल्प करेगा इंसानों के ऊपर इस इंड्यूस्ड टॉर्पर को समझने में। अलॉन्ग विथ
It protects them against harsh conditions such as food scarcity and low environmental temperature. अगर ऐसा सिचुएशन रहा तो इंसान लो फूड अवेलेबिलिटी और लो environmental कंडीशन में भी जी सकते हैं. This torpor can help in replicating hibernation, may therefore protect astronauts against the harsh condition of space flight. देखिए स्पेस फ्लाइट में सिर्फ ये रेडिएशन का ही खतरा नहीं होता, बहुत ज़्यादा खतरा और भी होता है, जैसे कि ग्रेविटी चेंज इन ग्रेविटी, फ्लक्चुएशन, वेटलेसनेस की कंडीशंस भी होती है, अचानक अचानक वेट बढ़ भी सकता है. तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं यहाँ पर जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनको और भी बहुत सारे खतरे होते हैं. तो अगर एस्ट्रोनॉट्स को हम लोग इस हाइबरनेशन स्टेट में रख सकते हैं तो उनके जान प्लस उनके उस एज को या इस एज स्पैन को ही बढ़ाया जा सकता है. तो अभी ये रिसर्च का टॉपिक है. हालांकि हम लोग स्पेस जितने भी हम लोग साइंस फिक्शन मूवी उसमें ऑलमोस्ट हम लोग ये चीजें कॉमनली देखते हैं. Next, replicating hibernation may therefore protect astronauts against the harsh condition of spaceflight, which induce challenge such as radiation exposures, bone and muscle wastage, advanced aging and vascular problems. उनसे बचाया जा सकता है astronauts को. The European Space Agency is also conducting research into the impact of hibernating astronauts, not just for health reason, but because it could reduce the amount of consumable required for a space journey and allow the mass of a spacecraft to be reduced by a third. देखिए ये रिसर्च सिर्फ उनके स्पेस या प्रोटेक्शंस के लिए नहीं है, बल्कि अगर इंसानों को हाइबरनेट किया जा सके तो उनके जो कंज्यूमेबल जैसे कि फूड आइटम्स हो गए, बाकी सब प्रोडक्ट्स वगैरह हो गए, उनको भी कम भेजा जाएगा, जिससे इंसान क्या कर सकते हैं, अपने स्पेस फ्लाइट का वजन कम कर सकते हैं और वो ज़्यादा फ्यूल लेके जा सकते हैं सो दैट दे कैन गो लॉन्गर. तो ये कुछ पूरा स्टडी है इस रिसर्च का. होप आपको ये सारा कंसेप्ट समझ में आया होगा. चलिए अपने अगले न्यूज़ पे चलते हैं. रिसेंटली माउंट नियारागोंगो में वोल्केनो इरप्ट हुआ है और इट हैज़ कॉज लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन टू डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. यूएन पीस कीपिंग मिशंस में इंडियन आर्मी के कंटेंजेंट को सेंड किया गया है वहां पर लोगों को बचाने के लिए. तो समझते हैं इसके बारे में. न्यूज ये है कि एज द एक्टिव वोल्केनो इन कॉन्गो माउंट नियारागोंगो इरप्ट अगेन, द इंडियन आर्मी कंटिजेंट अंडर द यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशंस असिस्टेड इन प्रोटेक्टिंग सिविलियन एंड यूएन ऑफिसर्स एज वेल एज एसेट्स ड्यूरिंग द इवैक्यूएशंस. माउंट नियारागोंगो को समझा जाए तो इट इज एन एक्टिव स्ट्रेटोवोल्केनो. ये एक तरह का स्ट्रेटोवोल्केनो है विथ एन एलिवेशन ऑफ 3470 मीटर इन द विरुगा माउंटेन्स एसोसिएटेड विद द अल्बर्टाइन रिफ्ट. ये रिफ्ट वैली के अंदर में आता है, अल्बर्टाइन रिफ्ट है उसके अंदर में ये प्रेजेंट है और इट इज लोकेटेड इनसाइड विरुंगा नेशनल पार्क. ये विरुंगा नेशनल पार्क के अंदर में लोकेटेड है एंड इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो about 12 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द टाउन ऑफ गोमो एंड लेक किवू. तो किवू लेक जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो उनसे लगभग 12 किलोमीटर के रेडियस के अंदर में. नेक्स्ट द मेन क्रेटर, ये जो आपको क्रेटर दिख रहा होगा, द मेन क्रेटर इज अबाउट 2 किलोमीटर वाइड, मतलब लगभग 2 किलोमीटर वाइड है, चौड़ा है ये. एंड यूजुअली कंटेन्स ए लावा लेक. उसके अंदर में एक लावा लेक है, लग रहा है कि जैसे कि खोलता हुआ लावा बहुत दूर तक फैला हुआ है. Nyaragongo lava lake has at times been the most voluminous known lava lake in recent history. Recent history में जो न्यारेगोंगा जो लेक है वो बहुत बड़ा है. हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो नियर हिस्ट्री में तो ये बहुत बड़ा लावा लेक है. एंड न्यारागोंगो एंड नियर बाई न्यामुरागिरा आर टुगेदर रिस्पॉन्सिबल फॉर 40% ऑफ अफ्रीकाज हिस्टोरिक वोल्केनिक इरप्शंस. तो न्यामुरागिरा और न्यारागोंगा ये दोनों बहुत ही मतलब लगभग 40% ऑफ अफ्रीका में जो भी वोल्केनो होते हैं वो यही निकालते हैं. तो इंडियाज रोल इन यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशंस, इसमें इंडिया हमेशा आगे रहता है और इस तरह की जहाँ भी त्रासदी होती है ऑलमोस्ट इंडियन फोर्सेस को वहाँ पर भेजा जाता है. एंड इंडियन फोर्सेस इज वन ऑफ द मोस्ट डिसिप्लिन्ड फोर्सेस ऑफ द वर्ल्ड, जिसके चलते इस जितने भी ये इस तरह के जो पीस कीपिंग ऑपरेशंस होते हैं या मिशंस होते हैं उसमें ऑलमोस्ट इंडियन आर्मी को ही यूज किया जाता है. चलिए अपने अगले न्यूज़ पे चलते हैं. हमारा अगला न्यूज़ है रिसेंटली यूके ने इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन स्कीम लॉन्च की है. ये कुछ अमेरिका जैसा ही है, तो समझते हैं. द यूनाइटेड किंगडम हैज अनाउंस प्लान फॉर ए फुल्ली डिजिटल बॉर्डर विद द लॉन्च ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन स्कीम. इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन स्कीम लॉन्च किया है यूके ने.
The scheme is similar to the US style electronic travel authorizations. US जैसा ही है, and it will pre-check the travelers coming to the UK. Under this, the visitors without a visa or immigration status have to apply for an electronic permit before coming to the UK. तो अगर कोई यूके आना चाहता है जिसके पास कोई वीजा नहीं है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक परमिट के लिए अप्लाई कर सकता है। एंड और उनमें से दोज हु वुड नीड द इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन वुड बी पीपल अराइविंग फॉर शॉर्ट हॉलीडेज और चेंजिंग फ्लाइट इन द यूके। या तो ऐसे लोग जो शॉर्ट हॉलीडे कुछ दिन के लिए यूके आ रहे हैं, या उनको फ्लाइट चेंज करनी है यूके से, वो कहीं और उनका डेस्टिनेशन होगा, तो ऐसे लोगों के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशंस, ये कार्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन ये इशू कर रहा है यूके। हाउएवर अगर पीपल्स बहुत ज़्यादा दिन तक रहना चाहते हैं यूके में, तो उनके लिए फिर वीज़ा कंपलसरी है। तो हाउएवर पीपल हु विश टू स्टे इन द कंट्री फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, फॉर ओवर 6 मंथ से ज़्यादा रहना चाहते हैं, दे वुड नीड टू ऑब्टेन ए वीज़ा रादर देन एन ईटीए। बेनिफिट्स ये है कि द सिस्टम वुड अलाउ ऑटोमेटिक एंड अर्ली सिक्योरिटी चेक हो जाएगा, एंड इट विल स्टॉप फॉरेन क्रिमिनल्स फ्रॉम अराइविंग इन द कंट्री with applicants only allowed to travel once they have been cleared. तो applicants को तभी ट्रेवल करने दिया जाएगा जो एक बार वो क्लियर हो जाए इससे। तो the scheme will also make it easier for the officials to count the number coming into the country. तो कितने लोग उस कंट्री में जा रहे हैं, इसका भी एक डेटा रखा जा सकता है। चलिए अपने अगले न्यूज पे चलते हैं। हमारा अगला न्यूज है, रिसेंटली व्हाइट फ्लाइज का खतरा हुआ है टू द एग्रीकल्चर, और हमारे बहुत सारा रीजन में ये छोटे छोटे जो व्हाइट फ्लाइज आपको दिख रहे हैं, इन्होंने ऑलमोस्ट अटैक किया है। समझते हैं न्यूज पर। रिसेंटली टू ए रिसेंट स्टडी, एक्सोटिक इन्वेजिव व्हाइट फ्लाइज इन इंडिया आर कॉजिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट यील्ड लॉसेस इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री क्रॉप्स। तो ये बहुत सारे क्रॉप्स को डैमेज कर रहे हैं। White flies are teeny sap-sucking insects that may become abundant in vegetables and ornamental plants, especially during warm weather. They excrete sticky honeydew and causes yellowing or death of leaves. तो इससे leaves मर भी जाते हैं, जिससे चलते प्लांट खराब हो जाते हैं। ये स्प्रेड ऑफ व्हाइट फ्लाइज के बारे में अगर देखा जाए तो फर्स्ट रिपोर्टेड इन्वेजिव स्पाइरलिंग व्हाइट फ्लाई इज नाउ डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर छोड़कर बाकी सारे जगह इंडिया में ये अवेलेबल है। सिमिलरली द रोगोस स्पाइरलिंग व्हाइट फ्लाई which was reported in Pollachi, Tamil Nadu in 2016 has now spread throughout the country including the island of अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। तो ये सब जगह ही अवेलेबल है या फैल चुका है अलॉन्ग विथ अंडमान एंड निकोबार में और लक्षद्वीप में। और बाकी जो दो स्पीसीज हैं, एल्यूरोडिकस एंड एल्यूरोडिकस रिजुओपेराकुलेटस, ये has been reported over 320 and 40 plant species respectively. Most of the whitefly species are native to the Caribbean island और Central America. तो Caribbean island और Central America के नेटिव होते हैं। रीजन ये हो रहा है कि रिसेंटली द होस्ट रेंज ऑफ ऑल द इन्वेसिव व्हाइट फ्लाइज हैज बीन इंक्रीजिंग ड्यू टू द पॉलीफेगस नेचर। ये कुछ भी खा सकते हैं, तो इसके चलते उनकी स्पीसीज बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और बहुत ज़्यादा फैल रही है। तो अगर जो कुछ भी खा सकता है वो आराम से अपनी स्पीसीज को बढ़ा सकता है। एंड प्रोलिफिक ब्रीडिंग, इनकी ब्रीडिंग रेट भी बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा, द इंक्रीजिंग इम्पोर्ट ऑफ प्लांट्स एंड इंक्रीजिंग ग्लोबलाइजेशन एंड मूवमेंट ऑफ पीपल हैज हेल्प द स्प्रेड ऑफ डिफरेंट वेराइटीज एंड देयर सब्सिक्वेंट ग्रोथ इन इन्वेजिव स्पीसीज। तो मूवमेंट के चलते भी ये दिक्कत हो रही है, तो ये भी एक रीजन है। ग्लोबलाइजेशन भी एक तरह का रीजन है। नेक्स्ट कंसर्न क्या है, ऑब्वियस सी बात है, ये डैमेज कर रहे हैं क्रॉप्स को। व्हाइट फ्लाइज रिड्यूस द प्रोडक्शन यील्ड एंड आल्सो डैमेज क्रॉप्स। अप्रोक्सीमेटली 1.35 लाख हेक्टेयर्स ऑफ कोकोनट एंड ऑयल पाम इन इंडिया आर अफेक्टेड बाय द रोगस स्पाइरलिंग व्हाइट फ्लाई। और other invasive whiteflies were also found to expand their host range on valuable plant species, especially coconut, banana, mango, sapota, guava, cashew, oil palm, and ornamental plants such as bottle palm, false bird of paradise, butterfly palm, and important medicinal plants. तो ये बहुत सारे अधिकतर बहुत सारे plants को ये अटैक कर सकते हैं। और इंसेक्टिसाइड्स इनके ऊपर में इनफेक्टिव होते हैं। द व्हाइट फ्लाइज हैज बीन डिफिकल्ट टू कंट्रोल बाय यूजिंग अवेलेबल सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड्स। जो जितने भी अभी अवेलेबल सिंथेटिक जो इंसेक्टिसाइड्स हैं, इनसे इनका कुछ नहीं होता है, तो ये बेअसर होता है। तो हेंस व्हाट आर द कंट्रोलिंग मेजर्स। तो कंट्रोलिंग मेथड ऑब्वियस सी बात है, बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड है। दे आर currently being controlled by natural occurring insect predators
parasitoids, natural enemies of pest, provide biological control of pest in greenhouses and control fields, and एंटोमोपैथोजेनिक फंगी, जैसे वह फंगी जो इनको किल कर सकता है। दूसरा, entomopathogenic fungus specific to whiteflies are isolated, purified and grown in lab or mass produced and applied into the whitefly infested field in combination with the release of lab reared potential predators and parasitoids। तो ये बेसिकली ये फंगी और बाकी इंसेक्ट्स वगैरह को भी खेतों में छोड़ दिया जाता है ताकि जो नेचुरल एनिमी है इस व्हाइट फ्लाई की, उनको लैब में छोड़ा जाता है ताकि उनसे वो डिस्ट्रक्ट हो सके। दूसरा, दे आर नॉट जस्ट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बट ऑल्सो इकोनॉमिकली फिजिबल। तो ये जो मेथड है, आपके जो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड है, ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली तो है ही, प्लस ये इकोनॉमिकली भी फिजिबल है, तो ये सस्ते भी होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। हम कल फिर मिलते हैं डीएनए के एक और सेगमेंट में। तब तक के लिए शुक्रिया।